इंद्रियां संयत होनी चाहिए, मन संयत होना चाहिए. संयत माने disciplined. Your senses should be disciplined. Your mind should be disciplined. And with this discipline, when you will sit to do your practice, your mind will go into the deep, deep oceanic experience of great joy and peace. You will become creator of joy. आप कहते हो खुशी संसार में है, मैं कहती हूं वहां दिखती है नहीं. दिखती है नहीं. मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन कार में अपनी पत्नी के साथ जा रहा था. पत्नी लगी शीशा नीचे करने, कहे ना 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 शीशा नहीं नीचे कर, ऊपर रख. क्यों? बोले पड़ोसियों को लगना चाहिए हमने एयर कंडीशन कार खरीदी है, लगना चाहिए. शीशा नीचे किया तो लगेगा बिना एयर कंडीशन का कार. नाक कटाएगी क्या? रख शीशा. बोले वो गर्मी लग रही. बोले तो क्या हो गया, 2 किलो वजन ही कम हो जाएगा, निकलने दे पसीना. शीशा नीचे नहीं करना. अच्छा, आप सोचते हो वो बेचारा गरीब आदमी बिना एयर कंडीशन की कार का घूमता है. तुम्हें मालूम, आप जितना एयर कंडीशन कार में रहते हो, आपके कार का जो कंप्रेसर होता है एसी का, वो सारी धूल, एलर्जेंस, माइक्रोब्स का घर बन जाता है. You might not be aware. Your own car AC is sufficient to make you sick because all the microbes and allergens are sitting in the AC and it remains intact inside and they are growing their family over there. So just by sitting in that air conditioned car for few hours every day, you are fit to get sick. The more you use the air conditioning, meaning whether heat or cold, both I am saying, if you use more of a heat, you will develop skin problems. How many people over here spend so much money on skin diseases? I have a pharmacist sitting over here. He can tell me how many people have psoriasis, how many people have eczema over here. Too many. How many people have dry skin? They keep on lapping up moisture on the body. They're buying these bottles and bottles of medicated moistures. But these moisturizers are not moisturizing still. So much dryness. Only if you had read Ayurveda principles, then you could understand. Don't use heat too much and use a spoonful of sesame seed oil every day. Drink it up. Use nariyal ghee, nariyal oil, the coconut oil. Use the cold pressed one. Use a spoonful every day. Drink it up on empty stomach. Your all dryness will go away. But these skin problems are coming because of the too much usage of air conditioning. Every time when I go to America in months of May and June, they always call that is month of pollens. Everybody is sneezing, everybody is having allergies. And they say this is month of pollen. Their leading newspaper give you the meter. They call it pollenometer. Which areas have more pollens? Which areas you should avoid, otherwise you will be sneezing and you will fall sick and you will end up in a hospital. And I say, what a joke. It is not those poor pollens which are making you sick. It is your own weak immune system. And if you don't know how to strengthen your immune system, no amount of medication can save you from diseases. मेरा ये सुझाव है, आपकी इच्छा आपके बच्चे को डॉक्टर बनाने की होए तो ये जरूरी नहीं कि उसको एलोपैथी का ही फील्ड दिखाओ, उसको आयुर्वेद का फील्ड दिखाइए. और मजे की बात यह है कि आयुर्वेद का ज्ञान से आप घर के जो हमारे रसोई के जो मसाले होते हैं ना, उन्हीं मसालों से इलाज हो जाते. How many of you know this, that America was trying hard to get haldi patented? Is it a joke or what? You cannot do that, but they tried.
And they are trying for so many herbs which we use in the kitchen. So some knowledge of Ayurveda and regular practice of yoga asana, regular practice of pranayama will give you the strength to sit down and experience great joy within. So you become an architect of joy. जब सारी दुनिया बैठ के रो रही होगी, परेशान हो रही होगी, दुखी हो रही होगी, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है, तुमने आंख करी बंद और अपना कीर्तन किया शुरू, तो मस्ती मस्ती हो गई, क्या परवाह पड़ी है। किसी ने कहा वो मर गया, मुंह में मरना ही था, कौन सी बड़ी बात हो गई। हाँ, दूसरे के लिए ही नहीं, अपने भी घर में हो जाए तो भी वो कहेगा कौन सी बड़ी बात हो गई। बोले जन्म हो गया, बोले कौन सी बड़ी बात हो गई। जीवन एक खेल हो जाता है, जीवन जीना आसान हो जाता है। सो अपने जीवन को आसान बनाने के लिए अपने शरीर, मन, इंद्रिय के ऊपर डिसिप्लिन, संयम को लाना आवश्यक होता है। पूछा है गुरु माँ, हाउ कैन आई स्टॉप नेगेटिव थॉट्स एंड हाउ कैन आई फॉरगेट माई फैमिली एज दे हैव सेड सम nasty words after my father died. See, the family members in Hindi are called what? रिश्तेदार. क्या बोलते हैं उनको? मामा, चाचा, बुआ, मौसी, काकी, फुई, क्या होते हैं? रिश्तेदार। नहीं, नया शब्द सीखो आज। मालूम क्या? रस्सेदार। रस्सी फंसाते गले में और फिर खींचते, उनका काम यही होता है। कांटों के पास जाओ और कहो देखो कांटे ने मुझको चुभाया, मेरा खून निकाल दिया। कांटे को डांटो। डांटेंगे क्या हम बच्चे को क्या कहेंगे? बेटा तुम कांटे के पास क्यों गए, है ना? तो हम कहेंगे बेटा रिश्तेदार के पास क्यों गए। अरे सुख के सब साथी होते हैं, दुख में सब भागी जाते हैं, ऐसा होता ही है। कौन सी नई बात? फिर मैं कहूंगी कौन सी नई बात? वाणी में आती, सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चाहूं दिस केरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़त कोऊ न आवत नेरे। कोई नजदीक नहीं आता है जब दुख का समय आए, और सुख हो तो सब आके पास में बैठ जाते हैं, भाई हमको भी पार्टी खिलाओ। और जहां कोई मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग हो गया, कोई हार्ट अटैक हो गया, तो भागो, ड्यूटी देनी पड़ेगी, भागो यहां से। और तो और कर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रहत संग लागी, जब हंस तजी काया, प्रेत प्रेत कर भागी। पत्नी लिपटती है पति से, मेरा पति, मेरा स्वामी, मेरा नाथ, पता नहीं क्या कुछ ड्रामा करती है। यहां पतिदेव के प्राण निकले तो ले जाओ, वो आ रही है, फूल रहा है, जल्दी जलाओ, भेजो इसको। रोती भी है पर अंदर अंदर भी रो भी रही है। पति आफ्टर ऑल मर गया है तो रो भी रही है, और साथ में पूछती रहती है अच्छा कब लेके जाना है, कब लेके जाना है। एक ने कहा नहीं अभी नहीं लेके जा सकते, इंश्योरेंस वाला आ रहा है, फोटो खींचनी। कंफर्मेशन होगी ना ये मर गया है, मर गया है तो फिर पैसा तो तभी मिलेगा ना। मुझे एक चुटकुला सुनाया यहाँ पर किसी ने। वो कहते कभी कभी SMS गलत पहुँच जाते हैं ना, आप नंबर टाइप किए 90 की जगह 9880 हो गया या कुछ ऐसे। एक आदमी की पत्नी मर गई, वो रो रहा था, और एक पत्नी जो है वो मूव हो रही थी। तो पति गया था काम से बाहर, तो उसने पीछे से सब सेटिंग कर दी। तो उसने SMS भेजा कि मैं ठीक ठाक पहुंच गई हूं,
जल्दी ही आपको भी बुला लूंगी। पर वो पहुंच गया उसके जिसकी पत्नी मरी थी। जल्दी ही, मैं जहां हूं मैं ठीक हूं। सोचिए, आदमी रो रहा है पत्नी मर गई है, और इतने में फोन में घंटी बजी, देखा तो मैसेज आ रहा है, मैं ठीक ठाक पहुंच गई हूं, जल्दी ही आपको भी बुला लूंगी। वो तुरंत भाग गया पंडित जी के पास। पंडित जी, ये क्या हो गया है? यमलोक में क्या SMS चालू हो गए? ये क्या हो गया? मुझे तो नहीं जाना अभी, ये क्या आ गया? कोई पूजा कराओ। मरा हुआ पति, मरी हुई पत्नी, अगर वो भी सपने में दिख जाए तो लोग कहते भूत दिख गया सपने में। कुछ पूजा पाठ कराओ, दोबारा नहीं दिखने चाहिए। हमारे सब संबंध इसी तरह होते हैं। रिश्तेदार ने बुरी बात कह दी तो हमें यह समझना चाहिए, उनके मुंह से अच्छी बात निकले तो हैरान हुई, अच्छा इतनी अच्छी बात तुमने बोल दी, कैसे? But if they say, relatives, they say annoying thing or a bad thing or taunting thing, don't be surprised. They are supposed to do that only. That is their job. They should be given a certificate of excellent performance. Right? So there is no need to be upset. Problem is this, we have expectations that everybody should say good, kind words to me, but we have forgotten people are not good and kind all the times. Even very good people sometimes behave in a very nasty way. They are just like us. They are humans. They are bound to err. So, don't expect, and whatever comes, accept. Got the formula? Don't expect, spelling is EXPECT. But don't expect, but accept, ACCEPT. एक्सपेक्ट नहीं करना माने अपेक्षा नहीं करनी, और जो आ जाए वो स्वीकार कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना। देयर इज नो अदर चॉइस। Otherwise, you'll end up being in pain and you'll be suffering so much. And we can only help ourselves with the wisdom. There is no other way. We cannot change people. If you really want people to be changed, change yourself. Can you change yourself? If you cannot change yourself, don't expect they will change for you. वो तो वैसे ही है। एक सज्जन के घर में शादी थी तो बोले सब आ गए, बुआ नहीं आई। एक ने कहा अच्छी बात है ना, नहीं आई तो आएगी तो सबसे लड़ाई करेगी। कह रहे नहीं, पर रौनक भी तो उसी से लगती है। और बताइए, लड़ने वालों को वो रौनक बोलते हैं? एक्सेप्ट कर लिया ना? So some people are going to behave in a bad way, and we should be able to accept that they are like that. So, no complaints. Gurvinder Singh, with your great blessings, when I sit down and close eyes and start witnessing mind, it seems that mind is divided into two. One part is speaking to the other. After a while, thoughts start disappearing and witness becomes clear. In my daily activities, I try to witness mind, but every so often I lose it. This struggle goes on. Please bless me that one day I can just stay as a witness in every moment and never lose it. For that, there is only one thing, and that is perseverance. You have to be just very particularly have to sit down and calm your mind and use your breathing as a tool to sharpen your awareness. The more
awareness will get sharpened, the more it will be easy to remain aloof when you are interacting and doing the worldly affairs and the interactions. जैसे आप गाड़ी चलाना जब सीखना चाहते हो तो आप खाली रोड देखते हो, आप बिजी स्ट्रीट के ऊपर जाके गाड़ी चलाना नहीं सीखते हो। आप किसी खाली सड़क में जाते हो, वहाँ आपको झटका लग के गाड़ी बंद हो जाए तो चलो आगे पीछे कोई है तो नहीं ना। अब आप बिजी स्ट्रीट में जाके सीखने लग जाओगे तो बहुत से लोग डांटेंगे और पुलिस वाला भी तंग करेगा, और आपका इंस्ट्रक्टर यहाँ पर एटलीस्ट ब्रिटेन में तो अलाउ नहीं करता। देखिए हिंदुस्तान में बड़ी आज़ादी, आप जीटी रोड पे चलानी सीख लो, कोई कह ही नहीं सकता कुछ कि ये क्या कर रहे हो तुम। ऑयल साइन भले ना लगाया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चला लो जैसे मर्जी चला लो। लेकिन जब आपने सही तरीके से गाड़ी चलानी सीखनी होती है तब आप किसी खाली सड़क में जाते हैं, जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती तब कहाँ चलाते हैं? एकदम भीड़ वाली जगह पे, मोटरवे पे, फ्रीवे पे, आप हाई स्पीड में, कंजेस्टेड किसी भी जगह में जा कर के आराम से गाड़ी चला सकते हैं। इसी तरह से अपने मन की ट्रेनिंग एकांत में देनी चाहिए। तो ऐसे समय में बैठो जब आपकी इंद्रियां बाहर का कोई व्यवहार न करें। बाहर नैना बंद कर, अंतर नैना खोल। वो जो आपकी बैठक का समय होता है वह बहुत जरूरी है। जितना जितना आप इस अभ्यास को गहरा करने लग जाएंगे, फिर यही अभ्यास जब आप व्यवहार करेंगे तो व्यवहार में ये आपके बहुत काम आएगा। नहीं तो क्या है, अभी ये सिर्फ एक विचार है कि मैं साक्षी हूँ, और साक्षी हूँ कि इस विचार को दूसरे विचार आके खा जाते हैं, तो फिर याद ही नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ। The attachment with the body is so strong and our association with the mind is so strong. Hence we forget, we begin to lose this thought that I am not the body, mind and senses. So to have that, you need to experientially understand that this body, mind, intellect and senses are different from me. It should not be a thought, it should be your experience. Otherwise you will be always struggling with this, that now I am witness, now I am not, now I am witness, now I am not. It has to be not intellectualization, it has to be your experience. And for that you need to have that state of mind where the mind has gone into total silence, your senses are totally withdrawn, and this will give you the first-hand experience of who you really are. Kshetrag chapi ma viddhi. Then you will experience you are the seer of this whole drama of body, mind, senses and the world. बनना नहीं है साक्षी, हम हैं। पर जब हम सोच से बन रहे हैं तो सोच तो बदलती रहेगी। मन का काम है बदलना, मन का काम है परिवर्तित होते रहना। मन में अलग 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 भावनाएं, अलग अलग विचार चलते रहते हैं। तो मन के साथ जुड़ करके हम साक्षी नहीं हो सकते हैं। मन से अलग होने का विचार नहीं, बोध होना चाहिए। ये This has more to do with your sharp awareness. And that needs lot of practice. साधना, साधना इसीलिए कही है। मन का हमारा निरंतरता से शांत रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि जब व्यवहार करेंगे तो मन को कुछ सोचना पड़ेगा। राग, द्वेष, सुख, दुख, स्थितियां बदलती हैं हमारे सामने, उसके अनुसार हमारे मन को सोचना भी पड़ेगा। तो जिस मन से सोच रहे थे कि मैं साक्षी हूं, उस मन से कुछ और सोचना पड़ गया तो साक्षी भूल गया। तो ये याद करने की वस्तु नहीं है, ये अनुभव की वस्तु है। और अनुभव के लिए आवश्यक है कि आप जो है बैठे।
इनके प्रश्न का एक हिस्सा जो रह गया था मैं वो भी पूरा कर लूँ. हाउ कैन आई स्टॉप नेगेटिव थॉट्स एंड हाउ कैन आई सी why do you want to stop something? You know, when you say I don't want to remember you, actually you will be remembering them more. Whomsoever you have forgotten are those people you never wanted to forget them, and yet you have forgotten them. People always ask this, what can we do to have all the time positive thoughts in our mind? Well, that is impossible. Your mind is a juxtaposed. It will have a negative and a positive, like a coin has two faces. So don't try to stop negative thoughts. I don't want any negative thought. I don't want any negative thought. You might do this mantra jap whole day and yet your mind will be having negative thoughts. So what do? You just light the lamp of wisdom and see every thought by creating a distance in between you and the thoughts, and use that which is positive and discard which is negative. Simple. एक छोटी सी कहानी कहती हूँ जिससे बात जल्दी समझ आ जाए. एक आदमी एक महात्मा के पास गया. कहते महात्मा जी मुझे देवी की सिद्धि करनी है, लक्ष्मी की, खूब सारा पैसा आ जाएगा फिर मेरे पास, तो मंत्र सिद्धि का मुझको तरीका बताओ. उन्होंने कहा ठीक है मैं मंत्र सिद्धि तुम्हें बताता हूँ, मंत्र भी देता हूँ, लेकिन बस एक चीज़ का याद रखना. बोले क्या? बोले जब तुम ये मंत्र करोगे ना तो उस समय बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए. बोले लो बंदर का ख्याल मुझे क्यों आएगा, मुझे तो लक्ष्मी की सिद्धि करनी, आप मंत्र दे दो. महात्मा ने मंत्र दे दिया और तरीका संत ने बता दिया. वो घर गया, आसन बिछाया, धूप अगरबत्ती सब कुछ किया, फूल चढ़ाए, पूजा करी, आंख बंद करी देवी का ध्यान करने के लिए, और ले बंदर आ गए. 2 मंत्र किए फिर बंदर आ गए, फिर 2 मंत्र किए फिर बंदर. अरे बंदर जा ही नहीं रहा. बड़ी कोशिश करी, तीसरे दिन पहुंच गया. बोले महाराज मंत्र दिया बड़ा अच्छा किया, पर ये काहे बोला बंदर याद मत करना. बोले क्यों? बोले अब बंदर ही बंदर आ रहे हैं सब. अरे समझ ही नहीं लग रही, आपको जरूरत क्या थी ये बोलने की कि बंदर याद नहीं करना. आप खाली मंत्र देते, मैं देवी का मंत्र करता रहता, छुट्टी हो जाती, मेरी सिद्धि हो जाती. आपने सब गड़बड़ कर दिया. तो जब हम ये कोशिश करते हैं ना, हमारे मन में कोई खराब ख्याल ना आए, हमारे मन में कोई खराब ख्याल ना आएंगे ही आएंगे. खुद ही बुला रहे हो भैया उनको. किसी के घर में बैठी थी तो मुझे कहते आप चाय तो नहीं पियोगे. मैं क्या मतलब, ये पूछ रहे हो, मना कर रहे हो, क्या कह रहे हो? तो नहीं काहे बोल रहे हो बीच में? कह रहे नहीं पूछना था ना, आप चाय तो नहीं पिएंगे. मैं अब तूने नहीं पहले फिर लगा दी, अभी दोबारा भी लगा दी, तो ऐसे नहीं पूछते. आप कहो चाय पिएंगे तो मैं हाँ या ना करूं, तुम पहले ही नहीं लगा रहे हो. तो मेरे मन में खराब विचार नहीं आने चाहिए. मेरे मन में खराब, तो हम ज़्यादा खराब को ही याद करेंगे. इसलिए ये विचार अच्छी बात नहीं. ये जो सब तरफ बोलते रहते हैं ना, डोंट ब्रिंग नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड, डोंट ब्रिंग नेगेटिव. आपका ध्यान हर चीज़ नेगेटिव पे ही जाएगा. कोई चोरी कर रहा है नेगेटिव, अच्छा नहीं मुझे नहीं देखना, पहले देखा तभी कहा ना नेगेटिव. सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग. So don't have this fight in your mind that I will not have any negative thoughts. What you can do is just bring the calmness in the mind. And bring this ability to discriminate in between truth and untruth, right and wrong, and then do which is right, and then don't do. Now to do right, you have to know what is wrong. Right? And to practice positive, you have to know what is not positive. So who says negativity is bad? One last story. One person from Indore came to see me in Ganor Ashram, and he just came with big, tears flowing in his eyes, and he prostrated. And I don't know what happened to him. Why is he doing this much? Sometimes you do a pranam, it is okay. When you do this much, and which you usually don't do, so even I am surprised. So I said, what happened to him? And then he cried and cried. And then he said,
you have saved me. You have saved me. I said, how? He said, if you were not in my life, then I too would have committed suicide the way my brother has done. I said, now, are you telling me this? That you are lucky that you haven't committed suicide? Or you are saying this, that your brother was unlucky that he committed suicide? And he categorically said, this is what I'm saying, I'm so lucky that I have not committed suicide. Otherwise, I am his brother and he was my brother. If he did that, even I would have done that. तो खुशी में भी गमी है, गमी में भी खुशी, क्या करो? कहना वो असल में ये चाह रहा था कि जीवन में सत्संग ना होता, ज्ञान ना होता, तो दुख परेशानी में आके मैं भी अपने आप को मार लेता जैसे मेरे भाई ने मार लिया। तो भाई के इस नेगेटिव एक्शन को देख के उसको अकल आ रही है ना कि स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। ये सीख लेना चाहिए। सही, अच्छी बात है कि हमें मालूम होना चाहिए क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। ये बहुत अच्छी बात, हमको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए क्या गलत है क्या सही है, ताकि हम अपने जीवन में सही को ला सकें और गलत से हम अपने आप को अलग कर सकें। प्रश्न कुछ और भी हैं, वो मैं कल ले लूंगी। अभी के लिए इतना ही, वाणी को विश्राम देते हैं और आप सबको मेरे बहुत प्यार भरे प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।